This is Engineer S.C. Sahu. So I am welcoming you all to MKD Education. Today we will discuss about the question and answers of your chapter 3, that is friction of engineering mechanics. Find the pull required to move a load of 100 Newton over a horizontal rough surface having coefficient of friction 0.3, and the pull applied will be at 30 degree to the vertical. Find the pull required to move a load of 100 Newton over a horizontal rough surface having coefficient of friction of 0.3 when the pull is applied at 30 degree to the vertical. So friends, एठी हमें मु गिवन डाटा लिखवा पूर्व फिगर को हमें जिबा फिगर रु गिवन डाटा इजीली बुझी हबो. We have to find the pull required. केते पुल दरकार होची गोटे बॉडी को मूव करिया पई over a horizontal rough surface. Again horizontal rough surface. So suppose this is your horizontal rough surface, right? So this is the body which is to be moved, and you know the required to move a load of 100 Newton. So body the weight given, that is your 100 Newton, and we have to apply a pull which is applied at 30 degree to the vertical. So this is the pull P. Previous case रे push थिला horizontal को 30 degree थिला, but ए case रे vertical को 30 अछि, right? So if this is the direction of vertical, then this angle is 30 degree, right? Vertical को 30 degree angle अछि, and coefficient of friction is 0.3. So again एठी मु given लेखुछि, given value कोन अछि ना weight of the body W equal to 100 Newton, theta which is with the vertical, that is important. Horizontal hele kete hobo 60 degree. So theta equal to 30 degree, and you know mu coefficient of friction it is given 0.3. हमको दरकार केते फोर्स अप्लाइड फोर्स केते हवा दरकार जोटा कि पुल अप्लाई हिची पर्टिकुलर केस रे, राइट? सो समान फॉर्मूला तीन दीटा प्रॉब्लम करि सारले किछि असुविधा नाही, समान मेथड रे करिबा. सो वेट तळे को लेला माने ऑब्वियसली रिएक्शन आसी जबो वर्टिकली अपवर्ड. सो ताको हम नॉर्मल रिएक्शन कहबा आरएन लेखुची, एंड फ्रेंड्स कोड जबो बॉडी पुल अप्लाई हिची फिगर को देखले जानि होची कोड जबो ना राइट को जबो. हम एम्प्टी टाणिबा माने आगो नै पडे आसीबो की. सो राइट को गला, सो फ्रिक्शन आसी गला टुवर्ड्स लेफ्ट. ऑलवेज रिमेंबर एठी मु जदियो शो करूची एक्चुअली ए जो कांटेक्ट सरफेस नै ना सेठी ही फ्रिक्शन ऑफ एक्ट होची, राइट? So this is the direction of F. It is the force 100 Newton weight, normal reaction, frictional force, applied force. हमको बाहर करियर अछि applied force केते. So सेति में हमें कोन करिबा सेम मेथड P को रिजल्व करिबा, राइट? So P को रिजल्व कले हमें डीटा कंपोनेंट पाइ जिबा P रो. देखो एठी केमिति रिजल्व करिया अगेन को डायरेक्शन रे केम जानिबा ना सिंपली चारिटा क्वाड्रेंट करिना P को शो करो ओरिजिन रो. So clearly it understood होची कि एडा फर्स्ट क्वाड्रेंट रे होची, ता माने x टा पॉजिटिव आ y भी पॉजिटिव. सो p रो x कंपोनेंट केते हबो हमें जानि छी सब बेले x टा पॉजिटिव cos रे बाहर, बट जदी x एक्सिस सहित एंगल थाता थीटा ताले cos हे थाना. जेतु एठी y एक्सिस सहित एंगल अछि थीटा बा 30 डिग्री, तेनु y कंपोनेंट हबो cos आ x कंपोनेंट हबो sin. सेटा इंपोर्टेंट मन रखो. So this is P रो जो कंपोनेंट रहला वर्टिकल कंपोनेंट हला P cos 30 आ horizontal component हला P sin 30, right? Then procedure कोन हबो you tell me. Procedure हला कि total forces along the plane 0, perpendicular to the plane also 0. So along the plane हम जे देखिबा डीटा फोर्स अगेन उटा हला F आ उटा हला P sin 30 आ perpendicular to the plane हले Rn P cos 30 100 तीनटा फोर्स. So now along the plane 0, so एठी भी x कंपोनेंट कहि परिबा जेतु x डायरेक्शन रहउची. सो सेति में हम बेटर हबो हम लिखिबा कोन ना टोटल फोर्सेस along the plane के लिखंती along the direction of frictional force ये भी ठीक. along the plane is 0. so along the plane जदी 0 हला हम कोन लिखिबा ना f minus p sin 30 equal to 0, or implies f equal to p sin 30. sin 30 कहते 1/2.
सो ताको एठी छाड़ीबा बा p/2 लिखले भी कुछ असुविधा नहीं। इक्वेशन 1 f/l मन रख मु जो मेथड कहूची गोटे मेथड सबल मन रख से f बाहर करबा rn बाहर करबा f/rn म्यू करबा जेते बड़ फ्रिक्शन रो क्वेश्चन हो सेही गोटे मेथड फ्रिक्शन बाहर करबा नॉर्मल रिएक्शन बाहर करबा ताको डिवाइड करबा म्यू पाइबा पई बस एति। सो एबे अलोंग द प्लेन गला तापर परपेंडिकुलर टू द प्लेन को जिबा फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन शॉर्ट लिख दोजी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज 0 काहे कि 0 होची अलोंग द प्लेन 0 होची परपेंडिकुलर टू द प्लेन 0 होची काहे ना इक्विलिब्रियम कंडीशन रे अछि। सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन जति 0 हला ताल फोर्स कोन अछि परपेंडिकुलर डायरेक्शन रे rn अछि ता सहित p cos 30 सेही डायरेक्शन रे सो प्लस हे गला p rn जुआडे p cos 30 से आडे सो rn प्लस p cos 30 हम कि नहीं माइनस हम काना तळ को अछि 100 इक्वल टू 0। सो एठो हम कोन बाहर करबा rn बाहर करबा हम बार बार से कथा ही कहूची ना rn इक्वल टू केते हो ना 100 से पडू पड़े जीवो माइनस टा प्लस हे गला 100 ये प्लस टा माइनस हे माइनस p cos 30 एटा हला इक्वेशन 2 हे गला f rn बाहर गेला। सो म्यू देछि 0.3 पुट कर फार्मूला सो म्यू इक्वल टू f बाय rn केते सिंपल क्वेश्चन म्यू जागरे केते पुट करबा ना 0.3 f केते p/2 डिवाइडेड बाय 100 माइनस cos 30 वैल्यू √3/2 पुट करले चले कोन तमे कैलकुलेटर मारिबो। सो मु डायरेक्टली लिखुची √3/2 p काहे ना cos 30 √3/2 आउ आकु कैलकुलेशन मु करूनी मु ऑलरेडी कैलकुलेशन करि सारची तमे खाली निजे कैलकुलेशन करिवो काहे कैलकुलेशन करले ही एग्जाम तुमको इजी हो। सो फाइनली आफ्टर सिंपलीफिकेशन यू गेट p इक्वल टू 39.48 Newton, right? So a calculation you try to solve by of your own power निजे कले ही जानिबो मु मेथड कहि देली बट कैलकुलेशन पार्ट इट इज योर टास्क कैलकुलेटर मारिबा ही गोटे कला कैलकुलेटर ठीक ठाक न परले आंसर भूल बाहर छिबो एंड योर मार्क विल बी डिडक्टेड। तेनु इंपोर्टेंट जेति की माने प्रोसीजर रे जीवा इंपोर्टेंट सेति की कैलकुलेशन करिबा। सो कैलकुलेशन पार्ट कंप्लीटली योर टास्क राइट मु खाली आंसर लिखि देली हाउ यू विल कैलकुलेट दैट इज योर ड्यूटी। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन required a pull of 18 kilonewton inclined at 30 degree to the plane just to move it. It was also found that a push of 22 kilonewton inclined at 30 degree to the plane just moved the body. So we have to find the weight of the body and coefficient of friction. So the next question, a body resting on a rough horizontal plane, again horizontal plane, required a pull of 18 kilonewton inclined at 30 degree to the plane just to move it. And it was also found that a push of 22 kilonewton inclined at 30 degree to the plane just moved the body. So friends, question कौन कहला? question कहूची कि गोटे हॉरिजॉन्टल प्लेन रे गोटे बॉडी रेस्ट अछि आमे ताकू जदी पुश अप्लाई करूछे देन इट रिक्वायर्स 20 आ पुश ता दीटा तक पुश हो बा पुल हो दीटा तक 30 डिग्री एंगल रे अप्लाई होची 30 डिग्री एंगल विथ हॉरिजॉन्टल पुश अप्लाई बेले 20 किलोन्यूटन दरकार होची पुल अप्लाई कले 18 किलोन्यूटन दरकार होची। मन रखो पुल ता इजी देन पुश गोटे बॉडी को मूव करिया कोले इट विल बी बेटर इफ यू अप्लाई पुल रादर पुश। सो ए पर्टिकुलर केस रे 18 किलोन्यूटन पुल अप्लाई हेची सो दैट बॉडी कैन बी मूव्ड समान बॉडी को समान प्लेन रे 22 किलोन्यूटन पुश अप्लाई होची टू मूव द बॉडी। सो एटी दीटा केस हमको पचार जी कोन ना केते वेट अछि बॉडी रो एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन केते अछि राइट। सो एटी दीटा केस आसुची दीटा केस पे मु सेपरेट फिगर ड्रा करबी। सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल केस 1 एटी लिखुची गिवन मु परे लिखिबी मु आगो फिगर ड्रा करे फिगर क्लियर हेले ही तमे बुझ परबो सब केस 1 दिस इज केस 2 राइट। सो दीटा देखो केस रे बॉडी एंड प्लेन समान माने हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर बॉडी रेस्ट अछि दीटा देखो केस रे ए जिनसटा समान माने समान बॉडी को समान प्लेन किंतु गोटे जगह रे पुल अप्लाई हेची आ गोटे जगह रे पुश अप्लाई हेची एंड यू नो गोटे जगह रे जोटा पुल अप्लाई हेची केते ना 18 किलोन्यूटन अप्लाई हेची
गिवन दरकार नहीं मो फिगर रो तुम क्लियरली बुझी पारथो आ मन रख कि एटा हॉरिजॉन्टल को 30 डिग्री इंटरवल रे 30 डिग्री एंगल रे अप्लाई हिची समान जिनस पुश अप्लाई हिची हॉरिजॉन्टल को 30 डिग्री एंगल करके पुश अप्लाई हिची जोटा 18 किलो न्यूटन रे मूव करथला एबे एटा दरकार होची 22 किलो न्यूटन राइट एंड एंगल समान 30 डिग्री एटा ला केस दीटा केस जदि हम टाणीबा 18 किलो न्यूटन रिक्वायर जदि हम ताको ठेलीबा 22 किलो न्यूटन रिक्वायर दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी हमको बाहर करिवार अछि कोन बाहर करिवार अछि वेट ऑफ द बॉडी केते अच्छा पिला माने जेहेतु समान बॉडी दीटा जाका केस ऑब्वियसली वेट समान सो W हम लिखले हां कि नहीं W समान दीटा जाका केस रे W समान किंतु नॉर्मल रिएक्शन डिफरेंट हो काहे कि डिफरेंट हो काहे कि ना नॉर्मल रिएक्शन जेति कि नेट डाउनवर्ड फोर्स होची एग्जैक्टली सही हिसाब रे अपवर्ड फोर्स आसीबो बट नेट डाउनवर्ड फोर्स डिफरेंट केस 80 डिफरेंट 80 भी डिफरेंट केस वाइज डिफर काहे कि ना 18 किलो न्यूटन रो जो कंपोनेंट वर्टिकली रहिबो 18 sin 30 80 22 sin 30 सो डिफर करूची so obviously 8 case रे normal reaction different 8 case रे also normal reaction different सिर्फ मैं case 1 पे normal reaction को rn1 लिखिबी and case 2 पे normal reaction को rn2 लिखली काहे कि बुझी परलो काहे कि ना net downward force अलगा so upward force अलगा ही आसीबो काहे ना total force तो जीरो ना along vertical direction net downward force equal to net upward force net downward force दीटा तक केस रे अलगा so rn1 अलगा हो rn2 भी अलगा हो सो जेहेतु यू नो फ्रिक्शनल फोर्स कोन फ्रिक्शनल फोर्स आमे गोटे फार्मूला एबे पढी छे बा थ्योरी रे भी पढी सारि छ म्यू इक्वल टू एफ बाय आर आरएन फ्रिक्शनल फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन सो पिला माने म्यू हला कोन ना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जोटा कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट कोन ना जे पर्यंत दीटा मटेरियल जो मटेरियल दीटा बा जो ऑब्जेक्ट दीटा कांटेक्ट रछि जो सरफेस दीटा कांटेक्ट रछि चेंज न होइछि म्यू रो वैल्यू चेंज होबनी आमे जदी कहबा friction between this duster and our palm so आमे जुआडे गले भी समान एमित रखो सेमित रखो जेमित रखले भी समान आमे ठिया हैचे ए फ्लोर आमो बॉडी आमो जो फुट अछि सो दीटा रे फ्रिक्शन समान फ्रिक्शन केते बडे चेंज होबे जेते बडे वन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी चेंज्ड जदी गोटी भी ऑब्जेक्ट चेंज होय फ्रिक्शन चेंज होय बट एई केस रे जेहेतु प्लेन एंड ऑब्जेक्ट बा बॉडी दीटा रे समान सो म्यू चेंज होनी एटा बडे प्रॉपर्टी मन रखो म्यू चेंज हबो केते बडे जेते बडे आइदर ऑफ द बॉडी विल चेंज सो जेहेतु दीटा जाक केस रे समान कांटेक्ट सरफेस सो म्यू चेंज होनी सो म्यू चेंज होनी आरएन अलगा एफ कोन ऑब्वियसली अलगा हो बिकॉज़ एफ इक्वल टू म्यू इनटू आरएन 8 केस रे आरएन1 ए केस रे आरएन2 और म्यू समान सो सेति पई फ्रिक्शनल फोर्स अलगा आसीबो सो फर्स्ट केस रे बॉडी टुवर्ड्स राइट मूव करूची क्लियर होचो फिगर रु क्लियरली बुझी पारछो कि राइट को मूव करबो so frictional force कोड आसीबो obviously opposite to the direction of motion so सेति पई हमें कोन लिखिबा ना frictional force will be towards left सेटा मु f लिखिबे ना f1 लिखिबे f1 काहे कि ना frictional force दीटा जगह केस रे अलगा आसीबो मन frictional force अलगा आसीबो जोथि पई तो 18 8 सेटी 22 आ एई केस रे बॉडी को देखले क्लियरली बुझी परछो बॉडी पर राइट को नो लेफ्ट को सो लेफ्ट को कला माने फ्रिक्शन कोड आसला opposite again towards right so एटा को हम लिखिबा f2 clear एति फिगर रू फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन यू शुड ड्रॉ द फिगर क्लियरली एज पर द क्वेश्चन देन इट विल बी वेरी सिंपलर फॉर यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम मु गोटिए मेथड तुमको कहि छी सब बेले मन रख फ्रिक्शनल फोर्स बाहर करबा नॉर्मल रिएक्शन बाहर करबा डिवाइड करबा म्यू पाइबा पई सेही मेथड रे ही हम जीवा मु अलगा किछि भी मेथड तुमको कहबिनी सो क्वेश्चन को आउथरे में जाउछी क्वेश्चन कहूची गोटे हॉरिजॉन्टल प्लेन रे ए ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट रेस्ट एंड सेही ऑब्जेक्ट को हमें जदी पुल अप्लाई करूछु 30 डिग्री एंगल रे विथ हॉरिजॉन्टल देन 18 किलो न्यूटन रिक्वायर होची समान ऑब्जेक्ट को जे 30 डिग्री एंगल रे हमें पुश अप्लाई करछु 22 किलो न्यूटन रिक्वायर होची देन वेट दी जाय का केस रे तो समान बॉडी वेट केते म्यू केते सो नाउ वी विल स्टडी वी विल एनालाइज केस बाय केस फर्स्ट केस रे मु ऑलरेडी ए दिन सब मु प्रीवियस क्वेश्चंस रे कहि सारछि मु डिटेल आ जाउनी क्लियरली एठु हमें बुझी पारु छे कि 18 रो जो दीटा कंपोनेंट 18 टा फर्स्ट क्वाड्रेंट रहिछि सो 18 रो वन ऑफ द कंपोनेंट x कंपोनेंट पॉजिटिव आल्सो y कंपोनेंट पॉजिटिव काहे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सो दिस इज 18
cos 30 ए भी रिजोल्यूशन रे तमे क्लियर थिबो 18 cos 30 एंड ए कंपोनेंटटा 18 sin 30 वर्टिकल कंपोनेंट राइट ए केस रे हमें ऑलरेडी गोटे पुश रो प्रॉब्लम करिछे सो तुमको इजी हो बुझिबा को मु ताको एक्सटेंड करूची 22 टा को एटा हला 22 किलो न्यूटन और एटा क्लियरली को क्वाड्रेंट रहउची थर्ड क्वाड्रेंट सो तार दीटा कंपोनेंट पड़ आसीबो नेगेटिव डायरेक्शन y नेगेटिव x आल्सो नेगेटिव सो एटा 30 माने एटा केते हला 30 एंड जोटा एंगल रहला सेटा हला cos सो एटा हला 22 cos 30 एंड दिस इज 22 sin 30 क्लियर फिगर क्लियर हो गला फिगर सरला माने प्रॉब्लम सरला सो एठू हमें डायरेक्टली लिखि परिबा f1 माने एपटे जहा फोर्स एपटे से फोर्स ऊपर को जहा फोर्स तळु से फोर्स f1 केते हला ना f1 इक्वल टू तमे को f1 से के समान 18 cos 30 18 cos 30 cos 30 वैल्यू केते √3/2 एडी पुट कले 18 * √3/2 2 रे 18 काटले 9 सो दिस इज 9 √3 f1 पाई गले rn1 केते हबो मु डिटेल जाऊ जाऊ ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में करिछि rn1 + 18 sin 30 = w सो rn1 केतेला क्लियरली w - 18 sin 30 w - 18 sin 30 and sin 30 वैल्यू केते 1/2 सो 18 * 1/2 केतेला 9 दैट मीन दिस इज w - 9 गला f1 rn बारला एक केस को आसो एक केस रे सेम f2 rn2 बार करबा f2 केते हबो f2 एपटे जहा फोर्स एपटे से फोर्स f2 = 22 cos 30 22 cos 30 and cos 30 के दे अगेन √3/2 सो 2 रे कटले दिस इज 11 √3 राइट एंड rn2 के देला सब फिगर रे अछि किछि मोर नै rn2 = ए दीटा जाक गोटे w अछि गोटे 22 sin 30 अछि सो w plus 22 sin 30 and sin 30 again केते ना 1/2 so 22/2 11 so that this is w plus 11 right so these are the case रा frictional force normal reaction पाई गले so mu equal to f1/rn1 जेहेतु मु कहि छै आरंभ करू mu दीटा जाक केस में समान so mu equal to f1/rn1 that is also equal to f2/rn2 काहे के ना बोथ केस रे mu समान एठी जहां mu एठी से हम सो आकु हमें जदी सॉल्व करबा मु ए ऊपर लिखुची f1 9 √3 divided by rn1 केते w - 9 equal to f2/rn2 11 √3 divided by w plus 11 so एठी √3 कैंसिल हे जिवो सिंपल कैलकुलेशन हम करूची 9 सहित w plus 11 मल्टीप्लाई करबा so this is 9w plus 99 equal to again 11w minus 99 so एठू w रो वैल्यू हम केते पाइबा सिंपलीफाई करले w रो वैल्यू you will get 99 किलोन्यूटन राइट वेट पाई गले सो mu पाइला पई f1/rn1 कर परिबा बा f2/rn2 कर परिबा आ w रो वैल्यू जेहेतु ऑलरेडी हमें पाई सारी से आइदर 80 पुट करबा बा 80 पुट करबा you will get mu suppose f1/rn1 पुट कले so f1 केते ना 9 √3 divided by w जगह 99 पुट करबा 99 minus 9 so 90 r वैल्यू केते हला ना 0.173 clear so this is your question number 4 I think you have understood very simple question सेही गोटी मेथड मन रख f rn काढिबा डिवाइड करबा राइट